I am Dr. Ramarani, Assistant Professor of Law. Today we will discuss on the topic nature and meaning of the economics. Economics is a social science that seeks to describe the factors which determine the production, distribution, and consumption of goods and services. It means it is a social science in which we study the production, distribution, consumptions of goods and services. अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम उत्पादन, वितरण और चीजों की खपत के बारे में अध्ययन करते हैं. Economics is a social science concerned with the proper uses and the allocation of resources for the achievement and the maintenance of growth with stability. The term economics has been derived from the Greek word oikonomos, which means to manage the house, to manage the income and the expenses of the house. In India, the term is popularly known as political economics, but in the late 19th century, economics suggested shorter term economics for the term economic science to establish itself as a separate discipline. Now, the classification of economics. Economics is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. In microeconomics, we study the behavior of the individual agents, individual firms, and individual buyers. It is a branch of economics which studies the behavior of individuals and firms in making decisions regarding allocation of limited resources. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसमें कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें यूजर्स को. Next is macroeconomics. In macroeconomics, we study the aggregate economic quantities such as the level and the growth rate of the national output, interest rate, unemployment and inflation. मैक्रोइकोनॉमिक्स का हम लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं अपनी कंट्री की नेशनल इनकम की, इंटरेस्ट रेट की, अनएम्प्लॉयमेंट की और इन्फ्लेशन की. इसकी ब्रॉड लेवल पर स्टडी की जाती है. इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ मनी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स व्हाट इज. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में हमारी जो प्रेजेंट में हमारा क्या स्टेटस है उसकी स्टडी की जाती है. एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. जो आज की टाइम में हमारे पास सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसमें हमें क्या चीज़ें और लानी चाहिए जिससे कि बेटर आउटपुट आ सके. Economics act consists of not merely in allocation of scarce resources among competing ends, but in the maximum total satisfaction according to one's own judgment. Economics में हम जो स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ये जो हमारे जितने पास रिसोर्सेज हैं उनका हम बेटर वे में कैसे यूटिलाइजेशन कर सकें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सके उनका, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले. नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक्स. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम फर्स्ट नंबर पर लेते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स को. पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स को, जैसे हमारा जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो भी हमारी इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करते हैं.
कोई भी गवर्नमेंट आती है वो चेंज हो जाती है, अपने रूल्स अप्लाई करती है, तो इससे भी हमारी जो इकोनॉमिक की जो पॉलिसी है, जो सिस्टम्स हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर इकोनॉमिक्स। जैसे सोशल हमारी ईवल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, these are influenced, our economics also influenced by these social factors. Next is technological factors. Technological factors also affect our economics. Suppose nowadays we use the first technology, technological equipment and tools. So it also help in our production system. If we use the modern techniques, then we can get the good production इन द मार्केट। जो भी टेक्नोलॉजिकल हमारे इक्विपमेंट आ रहे हैं मार्केट में, अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है और उसकी मार्केट में खपत होती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो भी कम आते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने में। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental factors also play an important role in influencing our economics. हमारे आसपास का जो environment है वो कैसा है, जो हमारे पास इक्विपमेंट हैं, टेक्निक्स हैं और स्किल्स है, वो कैसा है। अगर पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें होती हैं तो वो भी हमारी इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट कम्स टू द इंटरनेशनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी हमारी इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल जो वर्क कर रहे हैं, अगर उसका एटमॉस्फेयर हेल्दी होता है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इजीली अपने वर्क को रन करते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़। जो इंटरनल फैक्टर्स में जो एम्प्लॉयज़ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, अगर वो स्किलफुल है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है, और जिससे वो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसका आउटपुट वो बेटर आता है। नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक्स। जो सप्लायर्स होते हैं मार्केट्स में, अगर वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो अपना जो भी प्रोडक्शन है उसको इजीली मार्केट में सेल कर लेते हैं, और जिससे कि उनका जो स्टॉक है वो बेकार नहीं जाता, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, और वो फर्म और कंपनी इजीली ग्रो करती है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। creditor also play an important role in influencing the economics. जो हमारे creditors होते हैं, if they have the sufficient capital to invest in any firm or any branch, then there will be no lack of the capital and the infrastructure and the other facilities. जो भी फैसिलिटी एक फर्म या कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो पूरा उसको फुलफिल कर देते हैं, तो मार्केट में जो उनका प्रोडक्शन है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इजीली उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, और डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। जितनी भी मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। नाउ द क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और नॉट? There are some arguments of the economics about it. Some consider that economics is a science,
some economics say that economics is not a science. So science is a systematic body of knowledge which shows the validity of its law. जो कुछ इकोनॉमिक्स हैं जो उसको साइंस ऑफ वेल्थ मानते हैं इकोनॉमिक्स को. And Marshall rightly puts it, economics is on the one side the study of wealth and on the other part of the study of man. मार्शल ने कहा है कि एक तरफ तो इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी करता है और दूसरी तरफ मैन की स्टडी करता है, तो उसको हम साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर कह सकते हैं. नेक्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ए साइंस. लॉर्ड रॉबिन्स हैं, एंटोनी अगस्टिन हैं, ये कंसिडर करते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है. तो साइंस क्या है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ फैक्ट्स विच एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एनी रिलेशनशिप. अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स को कि वो साइंस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो डेटा का कलेक्शन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और सिस्टेमेटिकली डिवाइड किया जाता है उसको कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन में. तो इन इकोनॉमिक्स लॉज वी एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज. इकोनॉमिक्स में हम जो कॉज और रिलेशनशिप की इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उसको स्टडी करते हैं. जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, वह शो करता है कि जो प्राइस में चेंज होता है तो उसकी डिमांड में भी चेंज हो जाता है. तो ये कॉज और इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करता है कि मार्केट में प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर चेंज हो जाता है. Next is economics carries several experiments with economics. The experiments of economic laws are made in laboratories in a real world. जो इकोनॉमिक्स में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें जो लेबोरेटरी होती है वो हमारा रियल वर्ल्ड ही है. एंड इकोनॉमिक्स हैज द इक्वलिटी ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इवेंट्स. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल. All the economic laws are and rules are universal, equally applicable to the capitalist, socialist and the mixed economy. जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सब इक्वली एप्लीकेबल होते हैं हमारी कैपिटलिस्ट पर, सोशलिस्ट पर और मिक्स्ड इकोनॉमी में. Some economics like Marshall do not regard economics as a pure science. जो मार्शल हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक प्योर साइंस नहीं है. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक लॉज आर लिमिटेड बाय द डिफरेंसेस इन फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज का जो फिजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट सो एग्जैक्ट, क्योंकि जो इसके लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स के वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो कंडीशनल होते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द फ्रेज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. So in economics, experimentation is not possible as the object of its study is man. The conditions around the man are not fully controllable. जो इकोनॉमिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं वो एक मैन पर ही होते हैं, मैन की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में, और जो मैन के चारों तरफ जो कंडीशंस होती है उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज whatever 6 economics are gathered, there are 7 opinions. It means there is no uniformity of the opinions of the economics. So it is not a science of exactness. The difficulty in making correct predictions in economics due to its exact laws, therefore economics can't be considered as a pure science. So there is a difference of opinion among economics as a pure science or not, but it can be considered as a social science.
Now next is economics as a basis of social welfare. Economics is a branch of the uh, social welfare, and it is not the same as the standard of living, but it is concerned with quality of life, quality of environment, level of crime, and exact of drug abuse, availability of the social services. So social welfare is also a branch of the economics, and there are so many policies that are made by the government to for the social welfare. बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो लोगों का। जैसे हम 5 years प्लान्स हैं और हमारे जो हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्कूल्स बिल्डिंग्स हैं इंस्टीट्यूशंस का सेटअप है, these are all made by the social welfare, and our government is also trying to uh, more and more planning in favor of the social welfare. Next is economics as a basis of the social justice. Social justice encompasses economic justice, which guides us in creating those organized human interactions we call institutions. Social justice also imposes on each of us as a personal responsibility to work with others to design and continuously perfect our institutions and tools. सोशल जस्टिस में जितने भी हमारे सोसाइटी में पीपल हैं, अगर वो कोई भी इवल डीड्स करते हैं या कोई भी ऐसा गलत काम करते हैं तो उनको इक्वल पनिशमेंट दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या किसी भी जेंडर के पीपल हों, उनको इक्वल पनिश किया जाएगा। तो सोशल जस्टिस को मेंटेन किया जाता है और इकोनॉमिक जस्टिस इज ऑल्सो मेंटेन। Every person is free to do any type of business, and everyone is free to do any type of work for their livelihood. कोई भी ऐसा रूल्स या रेगुलेशन नहीं बनाया गया है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कि उसको कोई भी काम करने के लिए फ्री किया गया है। नेक्स्ट इज रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज ये हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो लॉ से कैसे रिलेटेड है। लॉ एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, वी कांट थॉट विदाउट लॉ एज इकोनॉमिक्स, एंड law can't be thought without economics, and economics can't be thought without law. So economic concepts are used to explain the effects of laws to access legal rules. जितने भी हमारे लीगल रूल्स हैं वो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं या कॉन्सेप्ट हैं उनमें यूज किए जाते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। उसका जो मेन पर्पस था कि जितने भी हमारी कंट्री में पीपल हैं उनको अपने राइट्स के बारे में वो अवेयर हैं या नहीं हैं, और उनका मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। तो जो मार्केट में जिस प्राइस पर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसमें उनकी क्वालिटी सही है या नहीं है और किस प्राइस पर वो उनको परचेज कर रहे हैं, इन सब की नॉलेज के लिए इसको लाया गया ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में लाया गया। और अगर किसी भी चीज़ में डुप्लीकेसी है या कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है तो कोई भी कंज्यूमर फोरम में जाकर अपनी रिक्वेस्ट, अपनी केस को वहाँ पर ले जा सकता है और अपनी
प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो जितने भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड केस हैं उसमें लॉ को रिलेट किया गया है। लैंड लॉ, ट्रस्ट लॉ, property law, these are the laws that help in the economic activities as well. तो ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं और लॉ का जो प्लेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट इज फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम। फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम और कैपिटलिज्म। फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम में everyone is free in it and everyone can do its business and everyone is free to do any type of work. As the name suggests, free enterprise system is a system where very few restrictions are placed on business activities and ownership. Government generally has minimal ownership of enterprises in the marketplace. It controls and maintains only law and order in the country. तो फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम कैपिटलिज्म में पर्सन फ्री रहता है, अपने अकॉर्डिंग ही वो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपने अकॉर्डिंग ही वो अपने बिजनेस को रन करता है, उसके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही उसका जो वर्क होता है वर्किंग आवर्स वो डिसाइड करता है और उसका जितना भी प्रॉफिट होता है जितना भी लॉस होता है उसका अपना होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। नाउ द मेरिट्स ऑफ द कैपिटलिज्म। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। इसमें जो कैपिटलिज्म में जो प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मशीनरी के थ्रू करते हैं, वो बल्क में प्रोडक्शन होता है और उसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसका जो प्राइस आता है, जो कॉस्ट आता है प्रोडक्शन का, वो भी कम रहता है। तो मार्केट में कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं कम कीमत पर। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। जो कैपिटलिज्म है इसमें सिंगल ओनर होता है, जितना भी उसका हार्ड वर्किंग होती है, जितना भी उसका डेडिकेशन होता है, ऑनेस्टली वो वर्क करता है अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, और जितनी भी उसकी प्रोग्रेस होती है उसकी अपनी होती है और जितना बेनिफिट होता है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही होता है। नेक्स्ट इज higher efficiency and incentive to hard work. In capitalism, every person has the capacity and the skills and knowledge according to that, according to their hard work, he is able to do the growth and the development of their business. कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को रन करने के लिए जितनी भी इफिशियंसी रखता है, स्किल्स रखता है, नॉलेज रखता है, जितना हार्डवर्क करता है उतना ही उसको बेनिफिट मिलता है, वो अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करता है, क्योंकि उसमें वो सिंगल पर्सन होता है, सिंगल ओनर होता है, तो जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं उसका रिजल्ट उसी को मिलता है। नेक्स्ट इज हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें कैपिटलिज्म में जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका हायर रेट होता है, क्योंकि जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट की है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको बेनिफिट होता है और उस बेनिफिट को अपनी सेविंग्स को अगेन वो उसी बिजनेस में लगाता है, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो उसके कैपिटलिज्म में कैपिटल फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Now next comes demerits. There are some demerits of the capitalism also. First one is leads to monopolies and concentration of economic power. जो कैपिटलिज्म में मोनोपोलीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो पर्टिकुलर फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है, अगर सिंगल
सेलर है तो वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपने मनमानी के प्राइस रखता है और उसको सेल करता है मार्केट में, तो मोनोपोलिस को लीड करता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक पावर है कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाती है, और क्योंकि जितना भी कैपिटलिज्म में कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को रन करता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होती है उतना ही उसका ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उतना ही उसका सेटअप होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जितने भी कैपिटलिस्ट होते हैं उनके हैंड्स में पावर हो जाती है। जिनके पास कैपिटल की कमी होती है वो इन सब चीज़ों को इजीली रन नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज वेस्टफुल कंपटीशन, इसमें आप आपस में कंपटीशन हो जाता है कि जितने भी कैपिटलिस्ट होते हैं अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं और आपस में compete करते हैं। नेक्स्ट इज इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इनकम की इनइक्वलिटीज होती है इसमें, जिसके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होती है वो उतनी ज़्यादा उनके पास उनको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, और जितनी इनकम कम होती है जिस व्यक्ति के पास उनको प्रॉफिट भी कम ही मिलता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सोवरेनिटी, जो कंज्यूमर के हाथ में सोवरेनिटी है उसका इसमें एक्सप्लोटेशन होता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर के हाथ में पावर नहीं होती है, जो भी प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं उस पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। in the capitalist, if a person has a capital, कोई किसी भी व्यक्ति के पास कैपिटल है तो वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी बिजनेस रन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कैपिटल की कमी है तो वो इस बिजनेस को रन नहीं कर पाता, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है और डिप्रेशन में रहता है व्यक्ति। नेक्स्ट इज प्लान्ड इकोनॉमी। Planned economy is also a socialism. Planned economy is the economic system in which decisions regarding production and investment are embodied in a plan formulated by central authority. इसमें क्या होता है कि प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें पर्सनली कोई भी इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके रूल्स और रेगुलेशन सारे सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा ही किए जाते हैं। नाउ द मेरिट्स ऑफ द सोशलिज्म, सोशल जस्टिस एंड बेटर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनका बेटर वे में यूटिलाइजेशन किया जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, इनइक्वलिटीज को कंट्रोल किया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर को मेंटेन किया जाता है इसमें। नाउ द डिमेरिट्स ऑफ द सोशलिज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसीज। इसमें जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो फाइलिंग जो प्रोसेस है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो टाइम टेकन होती हैं। इससे जिसने जो कैपिटलिस्ट होते हैं तो वो जिनका मनी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ होता है उनको लॉस होता है, क्योंकि फाइलिंग प्रोसेस में जो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, पॉलिसीज हैं, वो टाइम टेकन होती हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसमें कंज्यूमर सोवरेनिटी का लॉस होता है सोशलिज्म में। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड रिजिड स्ट्रक्चर्स। जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसमें जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसका लॉस होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, मतलब उसमें इजीली आप कोई चेंजेस
नहीं ला सकते, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। थैंक यू।